So good morning all once again. Let's start up with the things. I'll just share up my screen. I have one presentation which I wish to share it to you. Book की बजाय ये presentation है मेरे पास. I'll share this presentation in the group later on. So this presentation is all about your the content which is not there in the book, right? So this is a new edition by CBSE. तो हम कल डिस्कस कर रहे थे डेटाबेसेस के बारे में. This is all about the same. We have done users and advantages, disadvantages. We have to start with the relational database today. Okay, let's move on. First of all, what is relational database? Remember, relation is referred as table itself. Table को ही हम relation बोलते हैं. Some brief history of the databases is given. Various types of databases were developed. One of them was relational database. It was designed by E.F. Codd at IBM Computers in 1970. International Business Machine IBM जो कंपनी है वहाँ पे बना था. E.F. Codd ने ये पहली बार relational database बनाया था. And it happened in 1970. And it used to organize collection of data as a collection of relations. So what we do here is that we organize the data in the form of tables, right? So tables को ही हम relation बोलते हैं. Each row in the table responds to a unique instance of the data. That means that जैसे हम कल last class में बात कर रहे थे that databases में होता है कि duplicacy of data does not happen. There is no duplicacy. So what we do here is that we have unique copy instances, a copy, unique copy of data in every row. हर row में अलग-अलग तरह का unique data होता है. We cannot have duplicate data in two rows. And each column name is used to interpret the meaning of the data in each row. So we have different columns also, and every column has some specific kind of data in each row, right? So हर कॉलम में अलग-अलग तरह का डेटा होता है. Fine. So moving on to the next. Now let's take an example. For example, if we talk about a table named employee, right? So this figure is given. ये हमने कल भी last class में भी discuss किया था. This employee is the table, and this table has 5 columns and 3 rows. 5 columns, one is name, one is employee ID, one is gender, one is salary, and date of birth. These are 5 columns. Columns are always vertical. And we have 3 rows. See, this is row number 1, this is row number 2, row number 3. Row number 1 में क्या है? Name के नीचे Neha Mehta is the value. Employee ID has 1121 value, gender has female, salary has 20,000, date of birth has 4/3/1990. Right? Each row is one fact of one particular employee. So this is the detail of one particular employee, right? So एक row में एक employee की details है, right? So remember, जब भी आपको पूछा जाए how many rows are there, so will not count the first row. First row is basically the names of the column headers, so we don't count that. हमारी फर्स्ट रो है नेहा मेहता से शुरू. वैल्यू जहाँ पे है वो दैट इज काउंटेड एज फर्स्ट रो, राइट? क्योंकि आगे एक ऑप्शन आएगा दैट देयर इज वन वे टू कैलकुलेट हाउ मेनी रोज आर देयर. तो रोज काउंट करनी है तो आप 3 लिखोगे, 4 नहीं लिखोगे. फर्स्ट वाली रो काउंट नहीं होती है. रिमेंबर दैट. ओके. नाउ वी बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस थिंग, we need to know some of the terms. What is tuple? Tuple is called as a row. A row is also called as a tuple. Row को हम tuple भी बोलते हैं. Column is also called as attribute. In case question comes, what is attribute? You have to write the column of a table, which is always vertical set of values, called as attribute.
And similarly, what is tuple? Tuple is a row in a table, and it is the horizontal set of values, right? And each row represents one particular record. Fine. Then what is relation? A table is called as a relation. Table को यहाँ पे हम relation बोलते हैं. Then data types of values in each column is called as a domain. About domain is again important term. What is domain? Domain होता है जिस तरह की values हर column में है, किस तरह की values हर column में है, उसको हम domain बोलते हैं. Like integer numbers are used, so integer is the domain or the of one particular column. जैसे हमारे पीछे column था name, इसमें alphabets हैं, right? So इसकी domain क्या है? Characters. और इसकी domain क्या है? Employee ID की integers, because we have numbers here. इसकी domain क्या है? Date of birth is in date format, so the domain is date, right? Then is ये important है, इस पे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. What is degree? Degree is number of attributes, right? And attributes means rows or columns, sorry. तो जितने columns एक table के अंदर हैं, that is the degree of a relation, degree of a table you can say. And number of rows in a table or in a relation is called as cardinality of the relation. ये दो टर्म्स हैं, इन पे क्वेश्चंस कई बार आते हैं कि यू आर गिवन विद वन टेबल, और आपको पूछा जाता है कि बताओ भाई इसकी कार्डिनलिटी क्या है और डिग्री क्या है. देन यू हैव टू काउंट. अगर डिग्री बतानी है, यू हैव टू काउंट द कॉलम्स. हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? लेट्स से पिछले एग्जांपल में कितने थे? 5 कॉलम्स वर देयर. 1 2 3 4 5. सो विल राइट द डिग्री ऑफ this particular table employee is 5. And what is the cardinality? Then that we have to count the rows. How many rows are there? 1 2 3 rows. So the cardinality is 3, right? Then what is relation schema? Relation schema is how many types of values, how many types of attributes are there in the complete table, complete relation, right? So basically schema is how many, what are the different column names that you have added in that. तो हम इसको लिखते कैसे हैं? R लिख के ब्रैकेट में कॉलम्स के नाम होते हैं, ठीक है? लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, लिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कॉलम्स, राइट? लाइक इन दिस केस रिलेशन स्कीमा क्या होगा? ने R bracket open, name comma employee ID comma gender comma sale comma date of birth bracket close. So in case relation schema is asked, तो आपको बताना होगा R is the symbol that we write for relation schema, and then brackets में जो columns हैं वो आपको specify करना है, right? Relation states the set of tuples in the relation of a point at a point in time. If at one particular point, if you are asked what is the relation state of this particular table, relation state में जिस table जिस row पे आपको आपने select किया है, that particular row is the, or number of rows, if you have number of rows, so all those rows or the set of those rows is called as relation states, right? So these are basically terms. हाँ जी बेटा. सर जैसे वो ये आपने जो टेबल शो किया इसमें 5 कॉलम है, इसकी डिग्री 5 होगी? हाँ जी, जितने कॉलम उतनी डिग्री. ओके सर. जितनी रोज उतनी कार्डिनलिटी. उतनी क्या सर? कार्डिनलिटी, दूसरी टर्म कार्डिनलिटी है. ओके सर, ठीक है, ये याद रखो. यस सर. यस सर. Okay, now let's take example to understand all this. अब ये एक सेम एम्प्लॉय वाला जो टेबल हमने पीछे देखा था, सेम टेबल है. अब यहाँ पे व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन क्या है? एम्प्लॉय. नाम टेबल का क्या है? एम्प्लॉय. तो रिलेशन इज द एम्प्लॉय. देयर आर 3 ट्यूपल्स. 3 ट्यूपल्स. हाउ मेनी रोज? 1 2 3. 3 rows, right? And these are the columns: names, employee ID, gender, salary, date of birth. These are attributes. Attributes मतलब columns. Fine. Domain क्या है? Name के अंदर
सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, एम्प्लॉई आईडी के अंदर सेट ऑफ डिजिट्स है, जेंडर के अंदर मेल और फीमेल वैल्यूज है, सैलरी के अंदर फिर से नंबर्स हैं, और डेट ऑफ बर्थ के अंदर डेट का फॉर्मेट है। तो इनकी डोमेन सबकी अलग अलग है। नेम की डोमेन क्या होगी? कैरेक्टर्स। एम्प्लॉय आईडी की डोमेन होगी डिजिट्स या नंबर्स। जेंडर की होगी मेल और फीमेल। सैलरी की अगेन नंबर्स। डेट ऑफ बर्थ की डोमेन क्या है? डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट। डेट यू कैन राइट सिंपली डेट, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ दिस टेबल इज 5 as there are 5 columns. Cardinality of employee relation is 3 as there are 3 rows, right? Remember first row count नहीं करेंगे हम, ठीक है? स्कीमा क्या हुआ? एम्प्लॉई ब्रैकेट, जो जो कॉलम्स हैं उनके सबके नाम। रिलेशन स्टेट में ये फर्स्ट रो की डिटेल्स, कॉमा सेकंड रो की डिटेल्स, कॉमा थर्ड रो की डिटेल्स, ठीक है? लिखना ऐसे ही है, कर्ली ब्रैकेट लगा के, फिर लेस देन सिंबल है, फिर पहले रो पूरा, ग्रेटर देन सिंबल से क्लोज किया, कॉमा, सिमिलरली अदर रोज यू हैव टू राइट, राइट? इफ यू आर आस्क्ड कि भाई बताओ इस एम्प्लॉय टेबल की रिलेशन स्टेट क्या है, तो आपको ऐसे दिखाना है, फाइन? So you have to show this way. ये फर्स्ट रो, कॉमा फिर सेकंड रो, कॉमा थर्ड रो। और रिमेंबर ये सीक्वल इज ए लैंग्वेज, और लैंग्वेज में ये होता है कि आपको सिंटेक्स प्रॉपरली लिखना है। सिंटेक्स मतलब कि लिखने का तरीका बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। लिखने का तरीका क्या है? कर्ली ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है, ये लेस देन सिंबल लगाने ज़रूरी है, कॉमा लगाना ज़रूरी है। आप इसकी जगह पे कुछ और नहीं लगा सकते। In case of comma, you cannot put semicolon, right? You have to put comma only. And this less than symbol, greater than symbol, this should be used everywhere. तो लास्ट में इसको क्लोज भी करना, right? ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, right? Okay, now this is the method that I have developed. Basically ये बुक में नहीं होगा कहीं पे भी, ये मैंने बनाया था कि आपको अगर याद करना है, क्योंकि बेसिकली बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है, कार्डिनलिटी रोज का नंबर है या फिर कॉलम का नंबर है, राइट? So what I have designed is that we can make this rule that C and C never matches. C for cardinality and C for column, they will not match, ठीक है? कार्डिनलिटी क्या होगा? कॉलम नहीं होगा, रोज होगा। दिस इज हाउ वी कैन रिमेंबर दिस, ठीक है? सो इट्स इजी वे टू रिमेंबर। C for cardinality never matches with C for columns. C और C मैच नहीं करेंगे। इस तरह से आप याद कर सकते हो कि कार्डिनलिटी C नहीं होगा मतलब कॉलम नहीं होगा, रोज होगा, ठीक है? So whenever cardinality is asked, you have to specify how many number of rows are there. Whenever degree is asked, then number of columns you have to specify. Fine. So remember this. Some more characteristics of relations tables के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या characteristics हैं, we'll just go through it. इनको ये these are not so important, जो important चीजें मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा। these are all बुक में है? ये बेटा बुक में नहीं होगा, क्योंकि ये CBSE ने इस साल ही ऐड किया है। पहले नहीं था, ये लास्ट ईयर नहीं था, इस साल ही ऐड हुआ है। पहले आपकी बुक में वो मल्टीमीडिया टूल्स है, जिम सॉफ्टवेयर है, उसको हटा दिया गया है। तो इसकी आप फोटोज भेजोगे कि नोट्स? मैं ये जो प्रेजेंटेशन बनाई है ना, मैं सारी शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है? ओके सर, आप इससे स्टडी कर लें। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स में है ऑर्डरिंग ऑफ टिपल्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब जो रोज आपने बनाई हैं उन रो की ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वैल्यू शुड बी देयर, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, मतलब फर्स्ट रो को आप सेकंड रो में लिख सकते हो, सेकंड वाली को ऊपर लिख सकते हो, रोज ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है? ऑर्डरिंग इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। एंड सिमिलरली ऑर्डरिंग्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम्स, दैट इज आल्सो अनइम्पॉर्टेंट, यू कैन चेंज द ऑर्डर, ठीक है? कॉलम्स को आगे पीछे लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो, कोई भी लास्ट वाले कॉलम को उठा के फर्स्ट लगा सकते हो, फर्स्ट को पीछे लगा सकते हो, ठीक है? वो हम ऑर्डरिंग आगे पीछे कर सकते हैं। वो करते कैसे हैं, वो दैट वी डू विद द हेल्प ऑफ सर्टेन कमांड्स, वो हम आगे करेंगे जब प्रैक्टिकल पार्ट इसका शुरू होगा, राइट?
दिस इज इम्पोर्टेंट, नो टू ट्यूपल्स ऑफ द रिलेशन शुड बी आइडेंटिकल। ये हमने पहले भी 2 बार किया कि ट्यूपल्स मतलब रोज के अंदर आइडेंटिकल वैल्यूज नहीं हो सकती, राइट। तो ऑल्दो एक चीज हो सकती है कि 2 रोज के अंदर बाकी सारी वैल्यूज सेम हो, बट एटलीस्ट एक कॉलम के अंदर एक जो वैल्यूज है वो डिफरेंट होनी चाहिए। I think this was disconnected, so I'll just go back. नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। चलो, ordering is not important, rows cannot be identical, and each value in each tuple, that is row, is an atomic value. Atomic means which cannot be divided, right? Indivisible value. The value should be there should be only one value, and that value should not be divided. ये एक रूल है, आपको याद रखना है। If in case any of the value of an attribute in a tuple is not known or not applicable or not available, special value called as null is used. Null का बहुत important use है इस databases में। null का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ zero है। कई बार होता है कि किसी रो में या किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हम we don't want to give a value, हम उसको खाली छोड़ना चाहते हैं। तो whenever अगर ऐसा कोई आपने वैल्यू खाली छोड़ा है, कोई भी एनी सेल यू हैव लीव इट ब्लैंक, दैट इज कंसिडर्ड एज नल। ठीक है, नल का मतलब दैट पर्टिकुलर सेल इन दैट रो और इन दैट कॉलम इज ब्लैंक। ठीक है, ये ध्यान रखना, नल इज नॉट जीरो, इट इज ब्लैंक। तो वी कैन डू इट। ये हो सकता है कि आप रो के अंदर किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आप वैल्यू खाली छोड़ सकते हैं, राइट। That is considered as null value. Some examples are given, let's say unknown value. The person has a date of birth, but it is not known at the time of data entry. Date of birth तो है person की, but वो नहीं याद है, नहीं पता है, तो आप उसको खाली छोड़ सकते हैं। बाद में we can add. If the value is unavailable, like the person has a home phone but does not want to be listed, या फिर number change हो गया, so we are not available with the number, then we can leave that particular cell as blank. कॉलेज डिग्री एट्रीब्यूट, हाँ लो सी, कॉलेज डिग्री नाम का एक कॉलम हो, तो कॉलेज डिग्री हो सकता है किसी ने की हो, किसी ने नहीं की हो कॉलेज डिग्री, तो जो जिसने नहीं किया वहाँ पे हमें नल डालना पड़ेगा। ठीक है, दोज हु हैव नॉट डन द कॉलेज डिग्री, देयर वी हैव टू लीव इट ब्लैंक, और तो ब्लैंक को हम नल से लिखते हैं। ठीक है, इन दीज केसेस विल राइट नल देयर। नल मीन्स देयर इज नथिंग इन दैट। ओके, सी कंस्ट्रेंट्स एक टर्म है, वैसे कंस्ट्रेंट्स हम थोड़ा लेटर स्टेज में करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स बेसिकली होते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वैल्यूज, और कंस्ट्रेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है किसी भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर में, माईसीक्वल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी लाइक वी हैव डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग दैट हम लोग एक तो हमने बात की थी कि टेबल के अंदर किसी रिलेशन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज किस 2 रोज में नहीं आ सकती। ठीक है, उसको कैसे हम लोग मैनेज करते हैं? नॉट टू मैनेज दैट, व्हाट वी डू इज हम एक कॉलम ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज आ ही ना सके। तो हमें फिक्स करना होगा कि उस पर्टिकुलर कॉलम में, जैसे मान लो ये एग्जांपल है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी वी वांट टू फिक्स कि भाई एम्प्लॉय आईडी के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज ना आए। तो वो जो फिक्स करने का जो तरीका है, दैट इज कॉल्ड एज अप्लाइंग ए कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट उसी रिस्ट्रिक्शन को बोलते हैं, फिक्स करने को बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं, वी हैव द वेज टू अप्लाई दीज कंस्ट्रेंट्स। ऐसे ही अलग अलग कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है दैट एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी भी
must have 4-digit number. 4-digit number compulsory करना है. वो for that what we need to do is we have to apply a constraint for that, right? ऐसे ही date of birth के अंदर you want कि date of birth हमेशा 1985 के बाद वाली ली जाए, उससे पहले वाली ना ली जाए, right? तो ये जो standards हैं we can apply with the help of some constraint values. वो constraints कैसे लगाते हैं, वो क्या है, that will be covered up later on, right? But we have these options, right? Okay, so moving further with the constraint, पहले constraints ही thoroughly कर लेते हैं, चलो उसके बाद इसमें क्या क्या चीजें अप्लाई होती हैं. पहला जो टाइप है domain constraint, it specifies that the value of each attribute, each column in each tuple must be from the domain of that attribute. मतलब कहने का ये है कि जो भी वैल्यू हम किसी कॉलम में डाल रहे हैं वो वैल्यू उस कॉलम के डोमेन में से ही होनी चाहिए. डोमेन क्या था? डोमेन होता है कि किस तरह का डेटा हम डाल रहे हैं उस कॉलम में, राइट? सो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी इज अ कॉलम, उसमें हमने फिक्स किया दैट वी हैव टू ऐड 4-digit number, hence a value such as 12321, this is 5-digit, right? And this is not a number, it has alphabet also, a लगा दिया, alphabet है, तो ये डोमेन को वायलेट करते हैं, ठीक है? ये जब 5 डिजिट का है इसलिए गलत हो गया, ये 4 डिजिट का तो है बट अल्फाबेट है, डिजिट नहीं है, नंबर नहीं है, तो ये दोनों चीजें गलत है, ठीक है? तो ये डोमेन कंस्ट्रेंट जो है इस चीज को कंट्रोल करता है कि द वैल्यू इनसाइड वन पर्टिकुलर कॉलम should not violate the domain constraint, right? So this will give you an error in case the user want to add a value और value domain के हिसाब से नहीं है तो आपको error message आएगा, ठीक है? पहला तो ये restriction हो गया domain constraint का. फिर एक constraint है null value constraint. Null value constraint मतलब sometimes it is required that certain attributes cannot have null value. कई बार ऐसा भी होता है कि हमें एक ऐसा कॉलम बनाना है जिसके अंदर नल ना आए, मतलब जिसको हम खाली ना छोड़ सकें, तो उसके लिए भी कंस्ट्रेंट आता है नॉट नल, ठीक है? नॉट नल जब हम कॉलम क्रिएट करेंगे, जब हम टेबल बनाएंगे, see one thing I wish to tell you right here is that in MySQL software that is there in our syllabus, हमें कमांड्स के थ्रू भी क्रिएट एवरीथिंग. जैसे हमने टेबल बनाना है ना, उसके लिए कमांड लिखनी पड़ती है. कमांड में हम स्पेसिफाई करते हैं कि टेबल का नाम क्या होगा और उस टेबल के अंदर क्या क्या कॉलम जाएंगे, ठीक है? और उसी में हम लोग लिखते हैं कौन सा कंस्ट्रेंट आपने किस कॉलम को लगाना है, राइट? तो जिस कॉलम को आपने नल कंस्ट्रेंट लगाना है तो उस कॉलम के नाम के आगे विल राइट नॉट नल. ये लिखते कैसे हैं विल डू आफ्टरवर्ड्स. इसके बाद इसका प्रैक्टिकल पार्ट आएगा, फिर मैं दिखाऊंगा ये कैसे लिखते हैं, राइट? ऑल्दो आई हैव डन इट एंड मैंने स्क्रीनशॉट्स रखे हुए हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, आपको मैं दिखाऊंगा उसमें. so in case this name attribute and employee column, you want name जो column है employee table के अंदर, उसके अंदर आपको you want a restriction that it should not be left blank, वो खाली नहीं छोड़ना है, तो उस नेम के आगे will write not null. So if we apply not null constraint to any of the column, then we cannot leave any value blank in that column. तो उस column में value blank नहीं हो सकती, ठीक है? Next is super key constraint. It is the set of attributes or columns in a relation for which no two tuples in a relation state have the same combination of values. तो ये ऐसे कॉलम्स होता है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स. देखो एक चीज और है प्रॉब्लम यहाँ पे कि कई बार हमारे पास एक ऐसा टेबल आ जाता है जिसमें वी डोंट फाइंड कि भाई
ऐसा कोई पर्टिकुलर कॉलम है जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू ना आ सके। फॉर एग्जांपल एक नेम वाला कॉलम है, एक फादर्स नेम वाला कॉलम है, ठीक है, और एक मार्क्स वाला कॉलम। मान लो ये टेबल है हमारे पास। अब देखो नेम भी दो बच्चों का सेम हो सकता है, फादर्स नेम भी सेम हो सकता है, मार्क्स भी सेम हो सकता है, तो डुप्लीकेट वैल्यूज आने के चांसेस तीनों में है। तो इन दिस केस व्हाट वी डू इज, ऐसे केसेस में हम एक सुपर की कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं। सुपर की में क्या होता है कि हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स उठा लेते हैं, मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है, मल्टीपल कॉलम्स इन द सेंस कि आई विल पिक अप नेम एज वेल एज फादर्स नेम बोथ, राइट, मैं दोनों को पिक कर लूंगा। इन केस नेम मैच करता है तो हम फादर्स नेम को रेफर करेंगे, ठीक है। तो दिस इज सुपर की कंस्ट्रेंट। इफ यू वांट टू अप्लाई दिस थिंग, वी कैन अप्लाई दिस आल्सो, राइट। एवरी रिलेशन मस्ट हैव एट लीस्ट वन सुपर की, एक सुपर की हर टेबल में होनी चाहिए, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन, जो कि क्या होगा, जितने भी कॉलम्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनती है। राइट, एंड वन मोर थिंग दैट जितने कॉलम्स आप सेलेक्ट कर ले हो उनके आइडेंटिकल वैल्यूज ना हो, तो सुपर की वहां एप्लीकेबल नहीं होती जहाँ पे आइडेंटिकल वैल्यूज हो, राइट, सो दैट वी हैव टू चेक। ओके, सो मूविंग फर्दर, हम बाकी के कंस्ट्रेंट स्कैन करने से पहले कुछ कीज होती हैं दैट वी शुड नो व्हाट आर कीज। जो हम बात कर रहे थे कि भाई एक टेबल के अंदर दो रोज में सिमिलर वैल्यू नहीं होगी, वो कैसे नहीं होगी, राइट। टेबल में ऐसा क्या होता है, डेटा बेसिस में ऐसा क्या होता है कि दो रोज के अंदर सेम वैल्यू ना आ सके। उसके लिए व्हाट वी डू इज वी हैव टू डिफाइन वन कॉलम एज प्राइमरी की। हम एक कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं। अब प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की का मतलब वही है कि ऐसा कॉलम जिसके अंदर डुप्लीकेसी पॉसिबल नहीं हो। In case the user try to enter a value there, duplicate value, so the software will not allow, it will just send a message, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है SQL का। What is primary key? Primary key is that column in a table where a duplicate value cannot come. Moreover, प्राइमरी की कॉलम के अंदर नल भी नहीं आ सकता, उसमें आप खाली नहीं छोड़ सकते कोई भी वैल्यू, ठीक है। So like in this example you can see employee ID, this can be primary key। अब ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्राइमरी की कौन सा हो सकता है। नेम अकेले कॉलम को आप प्राइमरी की नहीं बना सकते क्योंकि दो बच्चों का नाम सेम हो सकता है, दो एम्प्लॉइज का नाम सेम हो सकता है। एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई आईडी इज द बेस्ट पार्ट बिकॉज एम्प्लॉई आईडी हमेशा सबका अलग अलग होगा। सो वी कैन सेट एम्प्लॉई आईडी एज ए प्राइमरी की है, राइट। बाकी सब में डुप्लीकेसी आने के चांसेस हैं। तो ये भी एक एग्जाम का क्वेश्चन होता है। यू आर गिवन विद अ टेबल एंड यू आर आस्क्ड व्हिच ऑफ दीज कॉलम्स कैन बी प्राइमरी की, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा कॉलम ऐसा है जिसमें डुप्लीकेसी आने के चांसेस नहीं है, आपको उसका नाम लिखना है, ठीक है। अब एक और सिचुएशन है कि एक टेबल के अंदर कई बार मल्टीपल कॉलम्स ऐसे दिखेंगे जिनमें डुप्लीकेसी नहीं हो सकती। जैसे स्कूल का टेबल है, स्कूल में बच्चों का रिकॉर्ड है मान लो, तो बच्चों की एडमिशन नंबर्स आर गिवन एंड लेट्स से रोल नंबर्स आर आल्सो गिवन। तो रोल नंबर भी सबके अलग होंगे, एडमिशन नंबर भी सबके अलग होंगे, तो ये दोनों कॉलम्स हो सकते हैं प्राइमरी की, है ना। तो ऐसे कॉलम्स जिनको हम प्राइमरी की बना सकते हैं, सच कॉलम्स आर कॉल्ड एज कैंडिडेट कीज, ठीक है। तो कैंडिडेट कीज वो कॉलम्स हैं जिसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं, राइट। अब इस टेबल के अंदर देखा जाए, विल ओनली टॉक अबाउट दिस टेबल। इस टेबल में देखो जेंडर में फीमेल और फीमेल दो बार आ गया, सैलरी में 20,000 दो बार आ गया, तो ये तो प्राइमरी की नहीं लग सकती। एम्प्लॉई आईडी अलग अलग है,
नेम भी अलग अलग हैं और डेट ऑफ बर्थ भी अलग अलग है। तो ये तीनों इस टेबल के अंदर, राइट, दे आर द वैल्यूज आर यूनिक। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों के तीनों कैंडिडेट कीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों कैंडिडेट्स हैं, एंड आउट ऑफ दीज कैंडिडेट कीज वी कैन सेट ओनली वन प्राइमरी की। इन तीनों में से एक को प्राइमरी की बनाएंगे। वो हमने डिसाइड किया था एम्प्लॉय आईडी का केस जो है वो सबसे डिफरेंट होना होगा, तो एम्प्लॉय आईडी कैन बी प्राइमरी की, अदर टू आर अल्टरनेट कीज। ठीक है, जो कैंडिडेट कीज जो प्राइमरी की नहीं बनी उनको हम अल्टरनेट कीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीजें हैं। कैंडिडेट की वो की है, वो कॉलम्स हैं जिनको हम प्राइमरी बना सकते हैं ताकि डुप्लीकेट वैल्यू ना हो। और आउट ऑफ दीज कैंडिडेट कीज वी कैन सेट ओनली वन प्राइमरी की, और जो कैंडिडेट कीज बच गई वो क्या होंगी, अल्टरनेट कीज। ठीक है, सो हेयर ये प्राइमरी की है। वन ऑफ द कैंडिडेट कीज मे बी डेजिग्नेटेड एज प्राइमरी की। कैंडिडेट कीज में से एक प्राइमरी की बनाया, राइट, तो लाइक एम्प्लॉय आईडी कैन बी प्राइमरी की ओवर हेयर, राइट। और इस प्राइमरी की के अंदर रेपिटेशन नहीं हो सकता, मोर ओवर इसमें कोई नल वैल्यू भी नहीं आ सकती। ठीक है, खाली नहीं जाएगा, ब्लैंक नहीं कर सकते इसको, राइट। सो थर्ड वन इज अल्टरनेट की, इट्स नॉट गिवन इन द स्लाइड, आई हैव मिस्ड वन स्लाइड। सो अल्टरनेट की वो है जो इनको छोड़ दे, प्राइमरी की को छोड़ के बाकी की कैंडिडेट की सारी अल्टरनेट की, राइट। लाइकवाइज और भी कीज हैं बट हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज दैट इज बियॉन्ड आवर सिलेबस। और भी होती हैं, जैसे एक फॉरेन की भी है। फॉरेन की का कंसेप्ट थोड़ा बहुत आगे आएगा, विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट दैट आल्सो। नल वैल्यू कंस्ट्रेंट हमने बात कर ली थी कि sometimes we want that in particular column we don't want to leave it blank। जैसे नेम वाला एग्जांपल पीछे किया था, नेम वाले कॉलम में नल नहीं आना चाहिए, तो हम नेम कॉलम के आगे नॉट नल लगा देंगे तो नॉट नल कंस्ट्रेंट ऐड हो जाएगा, राइट। देन एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, दिस आई विल डिस्कस एट लेटर एंड बिकॉज इसमें थोड़ी चीजें और हैं, फॉरेन की एंड ऑल। ये फॉरेन की का कंसेप्ट है, ये मैं थोड़ा बाद में बात करूंगा। ठीक है, ये हम थोड़ी टर्म्स कर लें, बिगनिंग कर लें, उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। अब हम लेट स्टार्ट विद एसक्यूएल, माई सीक्वल जो है, सीक्वल के बारे में बात करते हैं, राइट। आई थिंक टाइम इज अप नाउ, वी लेफ्ट विद 1 मिनट, सो सीक्वल वाला पोर्शन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। So anyhow, go through this presentation I'll share today, and then definitely we'll discuss in case you have problems. तो ये थोड़ी सी टिपिकल लग रही हैं चीज़ें, बट इनके आगे जब हम प्रैक्टिकल पार्ट में जाएंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। MySQL is very easy for you people. There are just few commands that you have to remember. That's it, right?